Should we start the class and do the Prabhat Sangeet at the end, or should we start with the Prabhat Sangeet first? नहीं नहीं, प्रभात संगीत कर सकते हैं. जस्ट गिव हर द राइट्स. अपर्णा को वो शेयरिंग राइट्स दे देना. Sure, sure. एक मिनट. जी, तो अश्विनी दीदी, आज के प्रोग्राम की आप होस्ट हैं. आई वुड लाइक यू टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड I invite you to take the screen from me. Meanwhile, I request if somebody is there and is willing to do the Prabhat Sangeet and Kirtana for 2 minutes. हमारे में से कोई प्रभात संगीत और कीर्तन गाएंगे, दादा या दीदी में से? क्या ना है दीदी? जी दादा. जी दादा. नमस्कार सभी लोगों को. नमस्कार दादा. जय शुभ वज्रधर शुभ्र कलेवर व्याघ्रं वरहर देहि पदम्. जय शुभ वज्रधर शुभ्र कलेवर व्याघ्रं वरहर देहि पदम्. जय विषण निनादक क्लेश विदूरक सर्वधिदारक देहि पदम्. जय शुभ वज्रधर शुभ्र कलेबर व्याघ्रं वरहर देहि पदम्. जय आदिपितादिदेव मन्त्रेश महादेव भवति ताभिनव देहि पदम्. जय शुभ वज्रधर शुभ्र कलेबर व्याघ्रं वरहर देहि पदम्. जय रजतगिरिनिभ मधुमय दुर्लभ आनन्दामितव देहि पदम्. जय शुभ वज्रधर शुभ्र कलेबर व्याघ्रं वरहर देहि पदम्. जय विषण निनादक क्लेश विदूरक सर्वधिदारक देहि पदम्. जय शुभ वज्रधर शुभ्र कलेबर व्याघ्रं वरहर देहि पदम्. धन्यवाद. धन्यवाद दादा. अब 1 मिनट का कीर्तन कर दीजिए प्लीज दादा. बाबा नाम केवलम कीर्तन 1 मिनट का. ये प्रोटोकॉल है हम लोगों का. बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम Pare, केवलम. you are watching?
video on the TV. केवलम् भावनां केवलम् भावनां केवलम् भावनां केवलम् भावनां केवलम्। परमपिता बाबा की जय। श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय। भक्त वत्सल बाबा की जय। जी दीदी, now you please continue. Screen is all yours. I invite Dr. Ashwani Didi, who had been taking our naturopathy class since January 2024, and around 11 classes we had already attended from her, and she had explained so many things about different aspects of naturopathy, and it was found so easy for us to follow. For today's class, she has invited a guest, Dr. Aparna. She is a Vaidya, certified Ayurvedic doctor. So I request Ashwani Didi to introduce her, to invite her, so that we can start the class today. We can start the session today. Thank you, Didi. Namaskar to everybody. It is my fortune and pleasure to invite Vaidya Aparna Sandhu. She's a BMS from R.A. Poddar College in Worli. She's also finished her diploma in teachers training course from Yoga Vidya Niketan. She's practicing Ayurvedic medicine and Panchakarma for more than 25 years. And she's a yoga teacher for more than 20 years. So with such a rich experience, now we will be hearing about a rich science again. Ayurveda is a more than 5,000-year-old science, and it runs parallel with naturopathy. In fact, it has more medications, more herbs. So it will be very interesting for us to hear from Aparna. So please, Aparna, you can take over and share the screen also. Yeah, sure. Namaskar, Dada. Namaskar, Didi. Namaskar, Aparna Didi. I just want to know from where are you speaking right now? I mean, where are you located? I am in Chembur, Mumbai. Okay, okay. Thank you, Didi. आप कहाँ से हो दीदी? Right now, I am also sitting in Mumbai. I am in Bandra East. Oh, okay, okay. Didi, are you related to Prabhakar Krishna Sandhu? Yeah, yeah. मैं In उनकी what way? अश्विनी दीदी मेरी जेठानी है. Great. That's a great. ओके, नमस्कार. तो आज नेचुरोपैथी सीरीज का लास्ट लेक्चर है. डॉक्टर अश्विनी दीदी ने हमारी अच्छी तरह से नेचुरोपैथी से मुलाकात कराई है, बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाया है उसके बारे में. आज हम नेचुरोपैथी से मिलता जुलता एक और साइंस है आयुर्वेद, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे. मैं आपका आयुर्वेद से थोड़ा परिचय कराऊंगी, थोड़ा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, आहार का महत्व क्या है, और कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी. ठीक है? I will just start with Dhanvantari Stavan. Dhanvantari ji is the Lord of Ayurveda. So let me just start with a prarthana. Namami Dhanvantarimadhidevam Surasurai Vandita Pada Padmam Loke Jararup Bhayamrutyunashanam Dhataramisham Vividhaushadhinam सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Can I share my screen now? Yes, yes, please. I'll just close my camera so it will be a better resolution. Just a minute. Can you see the screen now? Yes. Okay, so I'll just start today.
जैसे कि हम सब जानते हैं और जैसे अभी अश्विनी दीदी ने बताया, आयुर्वेद एक अत्यंत पुराना शास्त्र है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के मनुष्यों के लिए इस वेद की निर्मित की थी। उनकी तरह ही आयुर्वेद भी अनादि और अनंत है। ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान अन्य भगवानों को दिया और उन्होंने उसे पृथ्वी के ऋषि मुनियों को दिया। इन लोगों ने फिर इसके पश्चात आयुर्वेद का उपयोग अन्य लोगों की भलाई के लिए किया। आयुर्वेद शब्द का अर्थ क्या है? अगर हम ये देखना चाहे तो आयुर्वेद शब्द का अर्थ क्या है? जस्ट अ मिनट, वन सेकंड, आई एम जस्ट नॉट एबल टू, हाँ या गॉट इट। आयुषः वेदः आयुर्वेदः, यानी आयु का जो वेद है, आयु का जो साइंस है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। सो इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ। इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? क्यों बनाया गया ये आयुर्वेद? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगी के रोग का प्रशमन, ये था आयुर्वेद का प्रयोजन। यह प्रयोजन आई थिंक नेचुरोपैथी के समान ही है। दोनों का उद्देश्य है स्वस्थ मनुष्य की स्वास्थ्य का रक्षण और वर्धन करना, टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द हेल्दी। Ayurveda is not a mere pathy for treatment, it's a way of life actually. अन्य शास्त्रों में मनुष्य बीमार होने के बाद उसके रोग के लिए औषध दिया जाता है, पर आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जो हमें ये बताता है कि अपना शरीर कैसे स्वस्थ रखा जाए और उस स्वास्थ्य की वृद्धि कैसे की जाए, प्रतिकार क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, जिससे हमारा शरीर इतना ताकतवर हो कि हम बीमार ही ना पड़े। पर किसी कारणवश अगर हम बीमार हो भी गए तो उस रोग के निवारण के लिए आयुर्वेद में चिकित्सा भी बताई गई है। ये एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो ट्रीटमेंट कस्टमाइज करता है, यानी हर मनुष्य को यूनिक समझकर उसके लिए उसकी अलग चिकित्सा बताता है। इतना पुराना शास्त्र होकर भी उसके गाइडलाइंस आज भी मायने रखते हैं। दे आर रेलेवेंट इवन इन टुडेज वर्ल्ड। और ये बात कोविड पैंडेमिक में सिद्ध हो गई है। सब लोग अपने स्वास्थ्य को और रोग प्रतिकार शक्ति को कैसे बढ़ाए, इसका विचार करने लगे थे। आयुर्वेद में बताए गए बेसिक सिद्धांतों का अगर हम पालन करें, अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट बदलाव लाए, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से उत्तम होगा। हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी कर पाएंगे, न सिर्फ शारीरिक रूप से पर मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ हो पाएंगे। तो इस आयुर्वेद के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके मूल सिद्धांत क्या है? सबसे पहला है पंच महाभूत, द 5 एलिमेंट्स। वो है पृथ्वी, आप यानी जल, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है त्रिदोष, वात पित्त और कफ। आप सबने इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर सुना होगा। देन सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र या आर्तव। This you can equate to the systems of our body, like say musculoskeletal, digestive system, etc. Then 3 मल, मल यानी जो शरीर से बाहर निकाला जाए, तो स्वेद यानी स्वेट, पुरीश यानी फीसीज एंड मूत्र यानी यूरिन। फिर त्रिगुण आते हैं, सत्व, रजतम और षडरस यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये क्यों जानना जरूरी है? आयुर्वेद का पूरा अगर लाइफ स्टाइल के लिए जो भी हम उपदेश देते हैं उसका, और ट्रीटमेंट के लिए, सबके लिए इसका यूज किया जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट था पंच महाभूत। आयुर्वेद के अनुसार अपने आसपास की प्रकृति और अपना शरीर समान ही है। पूरा विश्व पांचभौतिक है, वैसे ही हमारा शरीर भी पांचभौतिक है। पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब इन्हीं 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। प्रत्येक वस्तु इन 5 से ही बनी है, कम अधिक मात्रा में इनका उसमें रहता है प्रमाण। हमारा शरीर इस सृष्टि का न केवल एक भाग है पर उसकी एक छोटी सी प्रतिकृति है। जब भी इन भूतों का स्वाभाविक संतुलन से बिगड़ जाता है, तब उन्हें हम इन तत्वों से ही हमें बैलेंस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को
बहुत ज्यादा लूज मोशंस और वॉमिटिंग अगर हो रहा है तो उसे डिहाइड्रेशन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसके शरीर का जो जल तत्व है वो कम हो जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है? तो इस कमी को भरने के लिए हम क्या करते हैं? ज्यादा पानी पी लेते हैं या ग्लूकोज चढ़ाते हैं आईवी के माध्यम से। यानी हमें शरीर में जो जल तत्व बढ़ाना है। दिस वे वी रिस्टोर द बैलेंस। हम जो भी खाते हैं या जो भी हम औषध के रूप में लेते हैं वह सब पांचभौतिक है। आयुर्वेद की चिकित्सा भी इन्हीं 5 तत्वों पर ही आधारित है, इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब जैसे मैंने बताया पंच महाभूतों का सभी से संबंध है। पंच महाभूत और अपने सेंसेस यानी अपने ज्ञानेंद्रिय, हर ज्ञानेंद्रिय का इनसे संबंध है। जैसे नासा यानी अपना नाक जो है उसमें पृथ्वी महाभूत का अधिक्य है। जिह्वा या जो जीभ है उसका आप तत्व से अधिक संबंध है। अक्षी यानी आंखों का और दृष्टि का तेज अग्नि महाभूत से ज्यादा संबंध है। त्वचा का वायु तत्व से है और कानों का आकाश तत्व से है। अब ये पंच महाभूतों के बाद में एक और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जिस पर आयुर्वेद पूरा खड़ा है, वो है त्रिदोष सिद्धांत। ये दूसरा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। आप सबने, जैसे मैंने पहले बताया, वात पित्त और कफ ये शब्द तो सुने होंगे। इनके बारे में कुछ जानकारी भी होगी आपको या कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो क्या है ये सब? क्या वात सिर्फ विंड है, या पित्त सिर्फ एसिड या बाइल है, या कफ यानी सिर्फ फ्लेम है क्या? आज मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हर दोष यानी वात पित्त और कफ में 2 महाभूतों का अधिक्य होता है। जैसे वात दोष में वायु और आकाश का, पित्त में तेज और जल का, और कफ में पृथ्वी और जल का अधिक्य होता है। इन्हीं तत्वों पर इन दोषों के गुणों और कर्म का आधार है। जैसे मैंने बताया फिजियोलॉजी, हाँ, अभी ये त्रिदोष का सिद्धांत किससे हम इक्वेट कर सकते हैं? तो फिजियोलॉजी से। यानी फिजियोलॉजी यानी अपने शरीर के सब कार्य कैसे होते हैं उसका साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी मतलब फिजियोलॉजी है। शरीर स्वस्थ हो तब क्या होता है, और क्या होता है जब हम बीमार होते हैं। वैसे ही उसी तरह आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत यानी फिजियोलॉजी ये बताया है कि हमारा शरीर किससे बनता है? वात पित्त और कफ से बनता है। उनका क्या कार्य है, जब हम स्वस्थ है या बीमार है, इसी पे आयुर्वेद का प्रयोजन निर्भर है। ओके, अगला बेसिक कॉन्सेप्ट है षड्रस यानी 6 रस। अलग अलग जो टेस्ट हमें आते हैं उसके बारे में। हम सब अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। हर देश में अलग अलग क्विजीन होता है, पर इन सब में जो भी कॉमन है वो क्या है? षड्रस है। यानी हर खाना, हर पदार्थ षड्रसात्मक है। इसमें कम अधिक मात्रा में एक या अनेक रस हो सकते हैं। जैसे कि अगर शक्कर देखा जाए तो केवल मधुर रसात्मक है, पर अगर आंवला देखा जाए तो आंवला है तो अम्ल रसात्मक। पहले टेस्ट हमें अम्ल आती है, पर थोड़ी देर के बाद अगर हम उसके ऊपर पानी भी पिए तो कैसा वो मीठा लगता है। तो 2 रसों का भी इसमें प्रेजेंस है। अब ये जो षड्रस है ये भी पांच भौतिक है। तो मधुर रस यानी स्वीट, मीठा, इसमें पृथ्वी और जल महाभूत का अधिक्य है। मधुर रस से वात और पित्त कम होते हैं और कफ बढ़ता है। अम्ल रस यानी खट्टा, इसमें पृथ्वी और तेज महाभूत का अधिक्य है। इससे वात कम होता है लेकिन पित्त और कफ बढ़ता है। यानी ये कब बढ़ता है? जब हम अधिक मात्रा में इसका सेवन करें तब। लवण रस यानी सॉल्टी, इसमें जल और अग्नि महाभूत का अधिक्य है। इससे भी वात कम होता है और पित्त कफ बढ़ सकता है। कटु यानी पंजंट यानी तीखा, इसमें वायु और अग्नि तत्व है। ये वात और पित्त को बढ़ाता है लेकिन कफ को
कम कर देता है। यहाँ ध्यान रखें, कटु यानी पंजेंट है, संस्कृत में थोड़ा सा ये वर्ड है। हम मराठी में यूजुअली कटु यानी कड़ू जब बोलते हैं तो वो दैट इज बिटर, बट इसमें थोड़ा उल्टा है। कटु यानी पंजेंट है यानी तीखा, जैसे कि चिलीज, पेपर्स जो भी है, मिर्ची वगैरह सब है, वो सब तीखे होते हैं। फिर तिक्त रसात्मक यानी बिटर, यानी जैसे कि कड़वा, मेथी, करेला वगैरह, उसमें वायु और आकाश महाभूत का अधिक्य है। इससे वात कम होता है, सॉरी वात बढ़ता है, लेकिन पित्त कफ बढ़ सकता है। और कषाय रसात्मक यानी एस्ट्रिंजेंट, जैसे कि सुपारी है या खाना खाने के बाद जो हम पान खाते हैं उसकी जो टेस्ट है वो है एस्ट्रिंजेंट यानी कषाय टेस्ट। इसमें वायु और पृथ्वी तत्व का अधिक्य है। इससे वात बढ़ता है और पित्त कफ कम हो जाता है। लास्ट ये है त्रिगुण, यानी 3 गुण जो है अपने मन के, सत्व, रज और तम। वैसे ही हमारा खाना भी सत्व, सात्विक, राजसिक या तामसिक होता है। हम जैसा खाना खाएंगे वैसे बनेंगे। तो ये 3 महागुण हैं। इनका भी देखा जाए तो पंचभूतों से संबंध है। जैसे कि अभी आकाश महाभूत का संबंध सत्व गुण से है, वायु महाभूत का रज से है, अग्नि महाभूत सत्व और रज दोनों से संबंधित है, जल महाभूत सत्व और तम से संबंधित है, और पृथ्वी महाभूत का संबंध तमोगुण से है। अब अगर देखा जाए कि इनके क्या है सत्व, रज और तम गुण, तो सत्व इज रिलेटेड टू एवरीथिंग दैट इज, जिसको हम पवित्र कहेंगे, सद्भाव है, ज्ञान है, अच्छाई है, खुशी है, संतुष्टि है, बड़प्पन, संतोष, ये सब यानी बैलेंस, हार्मनी, पॉजिटिविटी, पीस, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, ऑल दीज आर रिलेटेड टू सात्विक गुण। राजसिक गुण यानी wherever there is any movement और energy, excitement, desire, agitation, anxiety, वो सब उसके लिए उसकी वजह से होते हैं। जैसे कि कोई भी क्रिया हो या ऊर्जा हो, गति हो, लगाव की भावना हो या इच्छा की लालसा, ये सब रजोगुण के गुण हैं। तमोगुण किसको कहते हैं? जिससे जिसका संबंध अशुद्धता से है, या आलस्य, अंधकार, अज्ञान, इनर्शिया, इनएक्टिविटी, नेगेटिविटी, डलनेस, डिल्यूजन, डिप्रेशन, इग्नोरेंस, ये सब से होता है। हम जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं, ऐसे कहते हैं। इसलिए हमें सोच समझ कर खाना चाहिए। जैसे कि अभी मंदिर के पुजारी है या शिक्षक आदि है, तो इनको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। पर जो लोग समझो आर्मी में हैं या पुलिस फोर्स में है, स्पोर्ट्समैन है, या आज की दुनिया में देखा जाए तो मे बी स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज है, जो जिनको यहाँ से वहां भागदौड़ करनी पड़ती है, उनको थोड़ी एनर्जी की जरूरत है। तो अभी जैसे हमने देखा कि रजोगुण का इससे संबंध है, तो इन लोगों को थोड़ा राजसिक खाना भी जरूरी है। सात्विक तो डेफिनेटली है ही, सबको सात्विक ही खाना खाना चाहिए, लेकिन इन लोगों को जिनको थोड़ा सा ये एनर्जी की जरूरत है, थोड़ा रजोगुणी खाना भी खाना जरूरी है। हम सब आजकल में देखा जाए वैसे तो कम अधिक मात्रा में तामसिक खाना खाते ही है, जो दो इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एनीवन, स्पेशली ऑन अ डेली बेसिस और मे बी इन लार्ज अमाउंट्स, बट ये खाना सब ने वर्जित करना चाहिए आइडियली, और रोज तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब राजसिक आहार की तरफ जाते हैं। राजसिक आहार क्या है? The rajasic foods are the ones that have a stimulating effect on the mind and body. They stimulate motivation, create desires. According to Ayurveda, it is believed that people who can't stay still or are always moving are more drawn towards rajasic food. They stimulate aggression, passion, fire, imbalance of emotion, energy, alter the consciousness. रजोगुण को सीमित रखने के लिए उत्तेजक प्रकृति वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन हमें थोड़ा सीमित करना चाहिए, जैसे कि मसालेदार चीजें जो है, देन फिश, एग्स, चिकन, हॉट स्पाइसेस लाइक चिलीज एंड पेपर, ब्रिंजॉल, लहसुन, अनियन, रेडिश,
टी कॉफी यानी और कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो है, एरेटेड ड्रिंक्स है, इन सब से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए. यू कैन हैव देम इन मॉडरेट अमाउंट्स बट नॉट डेली एंड नॉट इन टू लार्ज अमाउंट्स. इसके बाद में है तामसिक फूड. It gives us the desire to stop, slow down, and rest. They put you in a phase where you want to do a particular task, but something sucks your energy and you no more feel like doing. So, according to Ayurveda, it is believed that tamasic food slows down mind functionality. An individual consuming tamasic food is likely to be lazy. This generates emotions like, say, insecurity, jealousy, and will regularly have mood swings. सुस्ती को दर्शाने वाला है ये तामसिक आहार. तामसिकता को कम करने के लिए फास्ट फूड, तले हुए पदार्थ, फ्रोजन, कैंड फूड्स, रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड, बासी खाना, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब से दूर रहना चाहिए. ये खाना तन, मन और आत्मा सबके लिए अत्यंत हानिकारक होता है. Not really good for mind, body or soul. But today if you see, we all consume it in some or the other form. घाई गड़बड़ है तो जल्दी से एक मैगी का पैकेट बना लिया वगैरह. तो let us try and stay away from this as much as possible. Last but not the least and obviously the main, सात्विक आहार है जो हम सब ने ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए. सत्व बढ़ाने के लिए ताजे, संपूर्ण और पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाना चाहिए. सात्विक खाना अहिंसा पर आधारित है. ये अपना शरीर स्वस्थ और मन साफ रखता है. जैसे कि ताजे फल है, सब्जियां है, साबुत अनाज है, नट्स एंड सीड्स, कोकोनट ऑयल, बटर, स्प्राउट्स, घी, सेसमी ऑयल, इन सब का प्रयोग रेगुलरली हमें करना चाहिए. अब हम इतनी देर से आहार के बारे में बोल रहे हैं, तो आहार का इम्पोर्टेंस क्या है? आयुर्वेद ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है इसको. हम सबको भी पता है कि अपने जीवन में आहार का महत्व क्या है. आयुर्वेद ने भी आहार को अनन्य साधारण महत्व दिया है. इसके अनेक फायदे हैं वैसे, पर ये फायदे मिलने के लिए अच्छा भोजन आवश्यक है. अगर अच्छा सात्विक भोजन रेगुलरली करेंगे तो ही हम स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे. ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत भोजन करेंगे तो त्रिदोष दृष्टि होगी और उसका हमारे शरीर पर विपरीत परिणाम होगा. हम बीमार हो जाएंगे. आयुर्वेद ने हर पदार्थ का या गुणों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है. जैसे रोज के जीवन में आने वाले पदार्थ है, दूध है, पानी है, अनाज है, फल, सब्जियां, इनका बहुत विस्तृत वर्णन आयुर्वेद में है. इतना महत्व है कि आयुर्वेदीय ग्रंथों में आहार पर अनेक अध्याय लिखे गए हैं. आचार्य चरक ने भी ऐसे कुछ रूल्स बताए हैं जिसका संबंध डायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य से होता है. आजकल डायटिशियंस भी अगर हम देखें तो इस पर जोर देते हैं. दे एम्फसाइज द नीड फॉर प्लानिंग ऑफ न्यूट्रिशन फॉर बोथ द हेल्दी एज वेल एज द सिक पीपल. आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति ने कितना भोजन करना चाहिए ये बताया है. इमेजिन करें, आपके स्टमक यानी पेट के 4 भाग है. एक सिंपल रूल है, इन 4 भागों में से 2 भाग भरने तक सॉलिड भोजन खाएं, 1 भाग पतला आहार और 1 भाग खाली रखें. हमारा जो पेट है ना, वो एक मिक्सर है अपने शरीर का. जैसे हम किचन के मिक्सर को चलाते समय पूरा नहीं भरते, कुछ भाग खाली रखते हैं ताकि अच्छा ग्राइंडिंग मिक्सिंग हो जाए, वैसे ही पेट में भी थोड़ी जगह खाली रखनी चाहिए ताकि खाया हुआ अन्न जो है अच्छी तरह से उन जूसेस और एंजाइम्स में घुल जाए. एक समय पर कितना खाना खाना चाहिए? तो उतना ही खाना खाना चाहिए जिससे कि हमारे मन को तृप्ति तो मिल जाए लेकिन पेट ऐसा भरा भरा सा ना लगे. अगले 3-4 घंटों तक भूख भी ना लगे और ना ही हमें अगले 3-4 घंटों तक खाना चाहिए ताकि पहले खाया हुआ जो अन्न है वो अच्छी तरह से पच जाए. खाने के बाद में करीब करीब से 100 स्टेप्स चले, जिसको शतपावली कहते हैं. ना कि तुरंत एकदम से रिगरस एक्सरसाइज करे, जिम ना जाए या भागदौड़ ज्यादा ना करे. क्योंकि क्या होता है, खाने के बाद में ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ना कि अन्य सिस्टम्स पर. तब जाके अपना खाना अच्छी तरह से हजम होता है. जैसे
खराब खाना खाने से या अनुचित अधिक आहार खाने से हम बीमार हो सकते हैं, वैसे ही आयुर्वेद के अनुसार खाने से ही हम उनकी अनेक बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं. लाइक देयर इज नो मेडिसिन लाइक फूड. ओके, अब ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं एक मसाले का डिब्बा है, यहाँ पे तड़का दिख रहा है, उसमें भी कुछ मसाले हैं यानी तड़का है. फिर नीचे हम देख सकते हैं एक औरत छाछ बना रही है. इन सब का संबंध है अन्न संस्कार से. अन्न का जो संस्कार है उससे इसका संबंध है. संस्कार यानी जो हम जैसे कि अभी देखें तो हम छोटे बालकों को जो खाना खिलाते हैं ना, जब शुरुआत करते हैं 6-7 महीने के होते हैं, तभी जब हम खाना खिलाते हैं तो हम डायरेक्टली ऐसा खाना नहीं देते जो हम खाते हैं. उस पे कुछ संस्कार करते हैं. वैसे ही हम खाने पर संस्कार करना तभी से शुरू कर देते हैं. हम बच्चों को जब देते हैं तब चावल और मूंग दाल जो पचने के लिए हल्के माने जाते हैं उनसे शुरुआत करते हैं, पर उन्हें भी हम धोकर पहले भून लेते हैं, फिर बारीक करके पकाते हैं. इस प्रक्रिया से पक कर तैयार होने वाला जो पदार्थ है पचने के लिए हल्का हो जाता है. वैसे ही दही भी आयुर्वेद ने हैवी यानी गुरु माना है हजम होने के लिए, पर उसमें अगर हम पानी डालें, अच्छी तरह से मथ ले, तब वो छाछ बहुत ही हल्का होता है पचने के लिए. और ये जो छाछ है खाना खाने से अगर पहले हम ले तो वो एक एपेटाइजर की तरह होता है, और खाना खाने के बाद में अगर हम छाछ ले तो वो एक डाइजेस्टिव हो जाता है. तो संस्कार यानी क्या है? संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते. ओके, यानी प्रॉपर्टीज कैन चेंज आफ्टर संस्कार. जैसे कि अगर कुछ हैवी फूड है तो उसे लघु कैसे या लाइट कैसे बनाते हैं? कुक करके. We don't eat every item raw, ना. With evolution, humans have learned different ways to make food easy to digest. तो उनके ऊपर कुछ संस्कार करेंगे, जैसे कि कुकिंग किया है या ड्राई रोस्टिंग किया है या गर्म पानी ऐड किया है या बेकिंग है, ग्रिलिंग है, स्टीमिंग है. तो इन सब से वो खाना हमारे लिए इजी होता है हजम होने के लिए. पहले तो सब कच्चा खाना खाते थे, पर आज वी कैन नॉट रियली डाइजेस्ट कच्चे. सब पदार्थ हम कच्चे नहीं खा सकते हैं, उन पे संस्कार करना जरूरी होता है. समझो किसी को अच्छी भूख नहीं लग रही हो तो हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसके जगह पे अगर जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं वैसे ड्राई रोस्ट करके वो खाना पकाया जाए तो इट विल बिकम इजी टू डाइजेस्ट. वैसे ही पानी भी अगर अच्छी तरह से बॉईल करेंगे, और फिर फिल्टर तो करना है, पर बॉईल करेंगे तो पानी भी हजम होने के लिए लाइट हो जाता है. या जो आदमी अगर बीमारी से उठा है, उसकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी लो हो गई है, तो उसके लिए भी ऐसा ही लाइट खाना खाना जरूरी है. वैसे ही मीडियम ऑफ कुकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी लेट्स जस्ट टेक ओनली वन एग्जाम्पल कि अगर चावल है, चावल को हम पानी में कुक करेंगे, वेजिटेबल ब्रॉथ है, चिकन ब्रॉथ है, और फिर राइस है, इसमें अगर कुक करेंगे तो उत्तरोत्तर हैवी हो जाता है. जैसे कि पानी में पकाया गया जो चावल है सबसे लाइट होता है, और दूध में पकाया गया सबसे हैवी हो जाएगा. तो अपने भूख के हिसाब से, अपने डाइजेस्टिव फायर के हिसाब से हमें देखना चाहिए कि किस तरह का संस्कार उस पे हमें करना है. अब जैसे कि खाने के बारे में हो गया, वैसे आयुर्वेद में ना बहुत ही यूनिक कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, प्रकृति के हिसाब से कस्टमाइज ट्रीटमेंट. तो इन सब के बारे में अभी मैं बात करूंगी. लेट्स स्टार्ट विथ दिनचर्या. दिन यानी एज यू नो डे, दिनचर्या यानी रेजिमेंट यानी कोई रूटीन होता है. अब आप स्क्रीन पे देखेंगे, उस पे तो आप देखेंगे अरे मैं भी ब्रश करती हूँ, मैं भी टंग क्लीन करती हूँ, पर इससे और भी कई चीजें हैं जो पहले हमारे एंसेस्टर्स किया करते थे रोज. आजकल हमें टाइम ही कहाँ मिलता है ये सब करने को. आई मीन आज के फास्ट पेस लाइफ में इट्स क्वाइट चैलेंजिंग एक्चुअली ना टू फॉलो अ कंसिस्टेंट सेल्फ केयर रूटीन. इनफैक्ट हेल्थ, वेलनेस, they are more often than not given a back seat. So let us just try to concentrate on all these simple things
कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा असर करती है। इसके लिए आयुर्वेद में दिनचर्या का वर्णन है। लेट अस जस्ट सी इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में एक हार्मनी आएगी और लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। तो दिनचर्या में क्या करें, तो पहले तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, आजकल काफी लेट उठते, लेट सोते हैं इसलिए लेट उठ जाते हैं, पर ट्राई कि ब्रह्म मुहूर्त पर उठने की कोशिश करें। फिर मल विसर्जन करें, नेचुरली होना चाहिए, इवैक्यूएट द बाउल्स एंड ब्लैडर। मुख प्रक्षालन, चेहरा धोना है, क्लीन द आईज बाय स्प्रिंकलिंग देम विथ कोल्ड वाटर। देन दंत धावन, आजकल तो हम टूथब्रश और पेस्ट यूज करते हैं, पर पहले जैसे कि आपको पता है नीम का या बबूल का जो होता था स्टिक यूज करते थे, वो अपने गम्स और टीथ दोनों के लिए ही बहुत लाभदायक होता है। इससे माउथ क्लीन तो होता ही है, माउथ की बीमारियां भी नहीं होती। इसके बाद में बताया गया है जिह्वा निर्लेखन यानी टंग क्लीनिंग। बाद में है अंजन, अंजन यानी आंखों के लिए होता है। इसमें जो हम काजल डालेंगे उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत आंखों में से पानी आएगा तो आंखें क्लीन हो जाती है। फिर है नाक का, जो हम नस्य करते हैं उसमें नाक में जो ड्रॉप्स डालते हैं। आप देखेंगे कि हर एक ऑर्गन का कैसे केयर लिया जाता है। नस्य है। फिर गंडूश और कवल यानी मुंह के हाइजीन के लिए होता है। इसमें नॉर्मली हम वार्म ल्यूकवार्म वाटर और सॉल्ट और हल्दी डाल के भी कर सकते हैं, या अगर कोई बीमारी है, माउथ का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से दवाई डाल के भी काढ़े से कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड गार्गलिंग। ओके। देन धूम्रपान, यानी नॉट द धूम्रपान of today, the cigarettes and all, but this is for with medicines actually to clear your nasal passage as well as your respiratory tract. इसके बाद में आता है अभ्यंग, वार्म ऑयल मसाज। अगर रोज कर रहे हैं तो अराउंड 7 to 10 मिनट्स इज ओके। हफ्ते में एक बार एक अच्छी तरह से हाफ एन आवर 45 मिनट्स का अभ्यंग भी बहुत जरूरी है, स्पेशली ठंडी के मौसम में। उसके बाद में आता है व्यायाम यानी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस है, योगा पोस्चर्स है, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है उद्वर्तन। उद्वर्तन यानी हम किसी पाउडर से जो शरीर को क्लीन करते हैं, वैसे मोस्टली हम दिवाली में ही करते हैं, दिवाली के पहले दिन उपटन लगाते हैं, बट दिस हैज टू बी डन एवरी डे टू कीप योर स्किन क्लीन। इसके बाद में है स्नान, फिर वस्त्र परिधान, सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने हैं, उसके बाद में ब्रेकफास्ट करना है और फिर काम पे चले जाना है। दोपहर का भोजन, इसके बाद में आता है दोपहर का भोजन सही समय पे करें, जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना खाना खाना चाहिए। उसके बाद में शतपावली है, और फिर अगर दोपहर में थोड़ा आराम करना ही है तो सिर्फ 15 या 20 मिनट वाम कुक्षी करनी है। उसके बाद में पुनः जो भी काम है रिज्यूम कर सकते हैं। फिर शाम का टाइम आता है तो अगेन कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, आधे घंटे तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिनको सुबह नहीं टाइम है शाम में कर सकते हैं, जैसे कि योगा है, स्विमिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर जो खाना खाना है, डिनर खाना है, लेट्स सी कि जितना जल्दी हो सके खाना खाना है हमें, वो एक्सरसाइज करने के आधे घंटे के बाद खाना खा सकते हैं। Now dinner should be the lightest meal of your day. उसके बाद में फिर से 15-20 मिनट आप हल्का सा वॉक कर सकते हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स करके फिर जल्दी से सोना है। Ideal is eating 3 hours prior to sleep. At a minimum, leave about 60 to 90 minute gap between dinner and going to bed. And this will aid digestion and allow for deep sleep. इसके बाद वाला एक यूनिक कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या। ऋतु यानी सीजन, एज वी ऑल नो, चर्या यानी अगेन रेजिमेंट। सो दिस इज अनदर यूनिक कॉन्सेप्ट। इट इन्वॉल्व्स अ सीजनल लाइफस्टाइल एंड डाइट यानी आहार विहार टू हेल्प पीपल एडजस्ट टू सीजनल चेंजेस। सो इससे होता क्या है, इट हेल्प्स अस अडेप्ट टू सीजनल चेंजेस विदाउट ऑल्टरिंग आवर बॉडीज होम्योस्टेसिस। फिर ये हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल कैपेसिटी भी बढ़ाता है, त्रिदोष को बैलेंस करता है। people can remain fit and healthy for the whole year. अब ये ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि प्रकृति मतलब क्या है, अपने बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन भी है एज वेल एज नेचर। सीजन में जो बदलाव आता है ना, उसका अपने शरीर पे भी जरूर असर होता है।
जैसे कि अभी से कोल्ड ड्राई वेदर है तो इससे वात बढ़ेगा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा तो पित्त बढ़ेगा, और कोल्ड वेट वेदर रहेगा तो कफ बढ़ेगा. To avoid such continued aggravation leading to imbalance of dosh, Ayurveda prescribes a seasonal routine. This is called as Rutucharya. For each season, there is a unique ahar and vihar that is specifically given by Ayurveda. So we know that there are 6 seasons. Okay, एक साल दो काल में डिवाइड किया गया है. ईच काल कंप्राइजेस ऑफ 3 सीजन्स. ओके, जैसे कि अभी ये अगर देखेंगे अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो उत्तरायण और दक्षिणायन. उत्तरायण यानी आदान काल होता है, अराउंड मिड जैन टू मिड जुलाई होता है, और बाकी का जो विसर्ग काल है मिड जुलाई से आगे जनवरी तक. तो शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हर एक ऋतु में कौन सा खाना खाना चाहिए और कौन सा विहार करना चाहिए, ये ऋतु के अनुसार बदल जाता है. और ये बदल अगर हम रेगुलरली फॉलो करेंगे तो वी विल रिमेन हेल्दी. नाउ कम्स द अदर कॉन्सेप्ट, दिस इज विरुद्धाहार. जैसे कि आप देख सकते हैं, दूध और खट्टे फल साथ में नहीं खाना चाहिए, शहद और घी इक्वल मात्रा में नहीं लेना चाहिए, कढ़ी और खीर साथ में नहीं है, दूध दही साथ में नहीं है. वैसे जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फिश और मिल्क साथ में नहीं खाना चाहिए. तो इसका अर्थ क्या है? विरुद्ध मतलब ऑपोजिट. तो ऑपोजिट आहार, प्रॉपर्टीज से जो ऑपोजिट है वो आहार साथ में नहीं करना चाहिए. देखा जाए तो नो फूड इज बेसिकली वेरी बैड. ओके, एवरीथिंग, हम जो भी पदार्थ खाते हैं अपने आप में तो अच्छे होते हैं, बट रॉन्ग कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो वो सबके लिए अच्छा नहीं होता. अगर कभी कभार खा लेंगे, अल्प मात्रा में खा लेंगे तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर लार्ज क्वांटिटीज में या रेगुलर इनटेक अगर उनका हो जाए तो इट मे बी हार्मफुल फॉर सम पीपल. इट में कॉज ऐसे पॉइजन लाइक इफेक्ट हो सकता है अपने शरीर पे, जैसे कि खुजली हो सकती है, या हाइव्स जैसे कि पित्त बोलते हैं ना वो, फिर रैश हो सकता है, किसी को उल्टी, किसी को छींके आती है, तो किसी को कुछ पदार्थ खाने से टंग स्वेलिंग होता है या मुंह सूज जाता है. और अगर एक्सट्रीम केसेस हुए जो रेगुलरली ये चालू करते हैं खाना, तो एक्सट्रीम केस में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज हो सकते हैं, स्किन डिसीजेस हो सकते हैं. हम अपने क्लिनिक में बहुत बारी ऐसे देखते हैं कि उनको हिस्ट्री पूछेंगे, स्किन डिजीज स्पेशली उसके बारे में अगर पूछेंगे तो वी फाइंड द हिस्ट्री ऑफ विरुद्धाहार इन मेनी पीपल. अब ये जो विरुद्धाहार है, it's a unique concept, na? The combination of food items that are incompatible with each other may cause this effect. Now, how can it go wrong? The food which is wrong in combination, which has undergone wrong processing या wrong संस्कार हुआ हो, उसमें हमने wrong proportion में उसको खाया हो, या wrong time पे अगर खाया हो उसको, तो it can become विरुद्धाहार. यानी the food which was meant to be useful can become हार्मफुल. एग्जाम्पल्स अगर देखने हैं तो वीर्य विरुद्ध है, यानी पोटेंसी की इनकम्पैटिबिलिटी अगर हो तो फिश एंड मिल्क एक साथ नहीं खाना है, क्योंकि फिश इज सपोज टू बी हॉट एंड मिल्क इज सपोज टू बी कोल्ड इन पोटेंसी, यानी वीर्य. फिर संस्कार विरुद्ध है, यानी प्रोसेसिंग इनकम्पैटिबिलिटी है, तो इसमें हनी को हीट नहीं करना है, या गर्म पानी में भी हनी नहीं खाना है. मात्रा विरुद्ध यानी डोज इनकम्पैटिबिलिटी, हनी एंड घी इक्वल अमाउंट में नहीं खाना चाहिए. क्रम विरुद्ध है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ कंजम्पशन इज रॉन्ग. ये तो हम सब लोग ऐसे ही करते हैं आजकल कि पूरा खाना खाने के बाद में हम लोग डिजर्ट खाते हैं ना, जो स्वीट है हम एंड में खाते हैं. वैसे हमारा खाना भी कभी बाहर जाते हैं तभी खाना भी हैवी होता है, ये स्वीट भी हैवी होता है. तो इट शुड नेवर बी दिस वे. द ऑर्डर ऑफ ईटिंग शुड बी ऑलवेज, पहले हमें स्वीट खाना चाहिए, क्योंकि मधुर रस थोड़ा हैवी होता है हजम होने के लिए, पृथ्वी और जल महाभूत का अधिक्य होने की वजह से थोड़ा हैवी हो जाता है, और इसलिए उसे अगर हम पहले खाएं तो वो अच्छी तरह से पच जाएगा. फिर काल विरुद्ध है, यानी टाइम ऑफ कंजम्पशन थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, कि अगर समझो बहुत गर्मी है, समर सीजन है, और उसमें हम बहुत तीखे तले हुए मसाले वाले चीज खाएंगे तो डेफिनेटली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो होने वाली है, एसिडिटी होने वाली है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से काल में कौन सा खाना खाना चाहिए.
फिर आता है संयोग विरुद्ध यानी कॉम्बिनेशन की इनकम्पैटिबिलिटी है, जैसे कि फ्रूट्स एंड मिल्क। अगर देखें आप तो समझो एक आध फ्रूट, खट्टा फ्रूट और दूध एक साथ करेंगे तो दूध फट जाएगा। वैसे ही अंजीर या ऐसा कुछ है और दूध का मिल्क, उसका मिल्क शेक बनाए तो वो भी फट सकता है। सो दैट मीन्स कर्डलिंग यानी उसका वो कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। ओके, ये कॉन्सेप्ट के बाद नाउ वी कम टू द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दोष। ओके, अपने दोष के बारे में हम अब बात करेंगे। तो पहले वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष है। ये तीनों दोषों के प्रेजेंस से आइदर आपकी प्रकृति वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति, डिपेंडिंग कौन सा दोष आप में ज्यादा है। कभी कभी एक या दो की भी शेयरिंग हो सकती है, तो वात पित्त प्रकृति हो सकती है, वात कफ हो सकता है या पित्त कफ प्रकृति हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन किसका डोमिनेंस है। अभी लेट अस जस्ट सी, अभी ये जो स्लाइड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट गो थ्रू दी स्लाइड्स, आई विल बी कॉलिंग आउट ऑल द पॉइंट्स। उसमें से देख लीजिए कि आप किससे सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करते हो। जैसे कि अभी मैंने वात प्रकृति के बारे में बोला है, 10-12 पॉइंट्स अगर है तो उसमें से आप कितने पॉइंट से आइडेंटिफाई करते हो, पित्त के कितने और कफ के कितने, और उसके ऊपर जिसमें सबसे ज्यादा आप टिक करेंगे वो आपकी प्रकृति हो सकती है। ब्रॉडली, आई एम टॉकिंग ब्रॉडली, वी नीड टू टेक अ डीप हिस्ट्री एक्चुअली फॉर दिस, बट फिर भी एक ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हमें समझना है कि अपनी प्रकृति क्या है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एक्चुअली खाना क्या खाना चाहिए। वात प्रकृति के लोगों के लिए कौन सा खाना अच्छा है, या पित्त के लिए कौन सा है, कफ प्रकृति के लिए कौन सा अच्छा है। तो इसके लिए प्रकृति जाननी जरूरी है। सो लेट्स जस्ट डू दिस स्मॉल एक्सरसाइज। सब लोग अपने स्क्रीन की तरफ देखो। मैं अभी आई जस्ट रीड आउट अ फ्यू थिंग्स, जस्ट सी व्हाट यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विथ। फर्स्ट, फॉर वात प्रकृति, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुट ऑन वेट। ये लोग जो होते हैं वात प्रकृति के, दुबले होते हैं, थिन होते हैं। मोस्ट ऑफ माई बॉडी फीचर्स लाइक समझो बाल है, फिंगर्स है, लिप्स है, गर्दन है, ये सब दुबली होती है, थिन होती है। आई हैव अ फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ एनर्जी, मतलब मेरी एनर्जी कभी एकदम बहुत ज्यादा होती है, कभी बहुत कम हो जाती है, एकदम ऐसे स्टेबल नहीं रहती। वैसे ही मेरी एपेटाइट भी फ्लक्चुएटिंग है, भूख भी मेरी फ्लक्चुएटिंग है। अगर मैं वात प्रकृति की हूँ तो कभी अच्छी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है। Then I tend to get bloated or gassy and constipated easily. Constipation हो सकता है, थोड़ी गैस हो सकती है कुछ खाने से। देन मेरी स्किन ड्राई हो सकती है अगर मैं वात प्रकृति की हूँ। माई हैंड्स एंड फीट आर ऑफन कोल्ड, मुझे ठंड महसूस होती है ज्यादा अपने फिंगर टिप्स में स्पेशली। आई एम अ वेरी लाइट स्लीपर, जल्दी आंख खुल जाती है थोड़ी सी भी आवाज से। आई एम वेरी क्रिएटिव। आई हैव अ रेस्टलेस माइंड, यहाँ वहाँ घूमते रहता है, कभी शांत नहीं बैठ सकती। मेडिटेशन करना है तो मन यहाँ से वहां भागते रहता है। आई लर्न थिंग्स क्विकली बट फॉरगेट देम इजीली एज वेल, मतलब फटाफट फटाफट सीख तो जाती हूँ, लेकिन पहले क्या किया है वो बाद में इतने जल्दी भूल भी जाती हूँ। एंड आई टेंड टू गेट एंग्शियस इजीली। So I'll just leave this slide on for a minute. Just go through it and see कि आप कितने points इससे identify करते हो। Just let me know when you're done. Yeah, about 30 seconds में I think I'll change the slide. Okay, can I change the slide? Yes, ठीक yes. है, बदल लूं? हाँ. या दूसरा है पित्त प्रकृति। पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, वैसे ही आई फाइंड इट रिलेटिवली इजी टू गेन और लूज वेट। मतलब इन्होंने अगर ठान लिया कि मुझे एकदम अच्छी बॉडी बनानी है तो कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया तो मोटापा भी फटक से आ सकता है। वैसे ही मोस्ट ऑफ माय बॉडी फीचर्स जैसे कि चिन, नोज, टीथ, दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज शार्प। सो शार्प फीचर्स होते हैं इन लोगों के। दे गेट एंग्री वेरी इजीली, जल्दी चिढ़ जाते हैं। हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है, बहुत अच्छी भूख लगती है इनको। बाउल मूवमेंट्स भी अच्छे होते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं, पेट बराबर साफ हो जाता है। स्किन थोड़ी ऑयली होती है,
और अगर गर्ल्स को देखा जाए तो मोर प्रोन टू एक्ने। धूप में जाएं तो बहुत जल्दी लाल हो सकती है स्किन। धूप में जाएं तो आंखें भी जलती है जल्दी। उनको पसीना जल्दी आता है, ज्यादा भी आता है। आई एम क्वाइट गोल ओरिएंटेड, यानी फोकस्ड रहता है माइंड। आई एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स, नए नए चीजों के पीछे मैं बहुत जाती हूँ। इफ आई एम अ पित्त प्रकृति पर्सन, आई एम अ नेचुरल लीडर। बॉर्न लीडर होते हैं ये लोग। मैनी पीपल कैन कॉल देम स्टबर्न ऑल्सो, उनकी ही चलनी चाहिए। एंड दे एंजॉय कॉम्पिटिशन। So just go through this slide, see how many points you identify with. ऐसा भी हो सकता है कि वात और पित्त का दोनों में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए और दोनों के पॉइंट्स लगे कि ठीक है, तो भी चलेगा, इट्स ओके। पसीना ज्यादा आता है इसलिए इन लोगों को प्यास भी बहुत जल्दी लगती है। पानी ज्यादा पीते हैं। दे आर मोर टेंड टू एसिडिटी, मोर प्रोन टू एसिडिटी। ओके, नाउ वी गो टू कफ प्रकृति। ये ना वात प्रकृति के एग्जैक्टली ऑपोजिट बोला जा सकता है, क्योंकि दीज पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू लूज वेट। पुट ऑन जल्दी कर लेते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देयर फीचर्स लाइक से हेयर, नेक, फिंगर्स, लिप्स, दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज थिक। दे हैव अ लॉट ऑफ स्टैमिना, बहुत एनर्जी भी होती है। दे हैव अ गुड स्टैमिना। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो होता है इनका, और ये डीप स्लीपर होते हैं। वात प्रकृति के कैसे थोड़े से भी आवाज से जग जाते हैं, ये शांत गहरी नींद सोते हैं। दे कैच कोल्ड्स फ्रीक्वेंटली। दे आर वेरी जेनरस पीपल। जल्दी से उनको गुस्सा नहीं आता है क्योंकि वो शांत रहते हैं वैसे। आई डोंट लर्न थिंग्स इजिली, बट एक बार अगर लर्न कर लिया तो देन आई रिटेन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दे आर वेरी सेंटिमेंटल पीपल। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर लव्ड वंस, and they are a good listener. They are good listeners. So just go through this slide and just write down how many numbers you identify with. So by the end of this exercise now, I think you will have known कि आपकी प्रकृति क्या है. Broadly speaking, may not be exactly the thing, but broadly speaking पता चलेगा, और फिर आगे जो मैं अभी बताने वाली हूँ इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. आगे मैं अभी बताती हूँ कि इन सब के गुण क्या होते हैं. What is Prakriti? What is constitution? It is a person's unique constitution that is determined at the time of conception itself. उसी टाइम से अपनी प्रकृति डिटरमिन हो जाती है, और it is difficult to change प्रकृति. It is a fundamental concept in Ayurveda, and this is used to define a person's physical, physiological as well as psychological traits. As you have seen, मैंने जो भी points डाले थे उस पे आप पता चल गया होगा. It is the basis for individualized treatment, diet and lifestyle counseling also. And why should we know our Prakriti? As I said, each dose has its own set of unique properties. If we understand them and know them, then it will be easy for us to understand what kind of ahar vihar suits us the most. And if we follow that, then we can maintain our health and not fall ill. So what are the properties of Tridoshas? पहले वात दोष देखेंगे. So Vat, basically, if you think of Vat, it is Ruksha, Laghu, Shita, Khara, yani cool, dry, rough and light. So to balance it, one needs to have foods of opposite nature. People who have aggravated Vat, जिनको Vat की कोई तकलीफ होती है, they can do well by having foods that are warm or slightly spicy, थोड़ा spicy, not very, lot of fluids, जो खाना जिसमें थोड़ा सा fat हो यानी घी के जैसा, है ना, grounding foods.
पित्त दोष इज आइडेंटिफाइड बाय हीट, थोड़ा स्निग्ध क्वालिटी का होता है वो, लाइटनेस होता है उसमें एंड शार्पनेस. सो टू बैलेंस पित्त, foods that are internally cooling, very mild, non-spicy, non-oily, they are recommended. For kapha prakriti, for kapha dosh especially, kapha dosh क्या कैसा होता है? Heavy होता है, oily, sticky, cool. So balancing excess cough would involve having foods that are light, dry, rough, and warm. So based on that now, let us see what foods are good for Vata Prakriti. What food can be had daily? मूंग दाल है, उड़द दाल है, ओल्ड राइस है, घी, तिल ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हॉट फूड, व्हीट, सब गार्ड्स यानी दूधी, लौकी, भोपला वगैरह जो रहता है, तुरई वगैरह वो सब, बीट रूट, कैरेट, ड्राई फ्रूट, स्वीट ड्राई फ्रूट्स, ये सब डेली खा सकते हैं. क्या चीजें हैं जो मॉडरेशन में खाने चाहिए? अब इन लोगों को गैस ना हो इसलिए कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली ये सब थोड़ा कम रखना चाहिए. सब बीन्स जो ऑल टाइप्स के हैं वो कम रखना चाहिए. तूर मसूर दाल, लेग्यूम्स, इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए. मतलब खा सकते हैं बट इन मॉडरेशन कभी कभी. और क्या है जो इन्हें अवॉइड करना चाहिए या एकदम कभी कभार इन छोटे छोटे अमाउंट्स में ले सकते हैं? वो है स्पाइसी, बहुत तीखा, मसाले वाला फूड, फर्मेंटेड फूड, स्टेल फूड, दही, बहुत ज्यादा खट्टा खाना, ये सब इन्हें अवॉइड करना है. वैसे ही पित्त प्रकृति के लोगों के लिए क्या अच्छा है, रोज क्या खा सकते हैं? तो ऑल द गार्ड्स, बॉटल गार्ड, स्नेक गार्ड एंड व्हाटएवर ऑल दोस गार्ड्स. लीफी वेजीज आर ओके, पर मेथी और मोरिंगा से दूर रहे. मोरिंगा यानी शेवगा यानी ड्रम स्टिक्स, बिकॉज वो गरम पोटेंसी के होते हैं. बीटरूट, कैरेज, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कोकोनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फ्रेश कर्ड, फ्रेश बटर मिल्क, कोरिएंडर, जीरा, कोकम, सब्जा, कोकोनट वाटर, ये सब they can have. What can be had in moderation? Then legumes, spices, radish, oily or fried food, fermented food, garlic food. जैसे अभी ये राजसिक खाना जो है वो इन्हें कम खाना चाहिए. पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कम खाना है. और क्या अवॉइड करना है? तामसिक फूड, पिकल्स, फ्राइड फूड, स्टेल फूड, वेरी सार फूड, स्पाइसी नॉन वेजिटेरियन, मेथी, ड्रम स्टिक्स, बहुत ज्यादा खट्टा खाना, ये सब इन्हें अवॉइड करना है. कफ प्रकृति के लोगों के लिए रोज क्या खाना अच्छा है? सब तरह की वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, स्वीट ड्राई फ्रूट्स है. तिल ऑयल उनके लिए ज्यादा अच्छा है और मस्टर्ड ऑयल भी अच्छा है. ड्राई आइटम्स जैसे खाखरा वगैरह होता है वो ठीक रहता है उनके लिए. मॉडरेशन में क्या खाएं? तो वेरी कोल्ड फूड जो रहता है फ्रिज में रखा हुआ, वैसे फूड्स विथ अ लॉट ऑफ वाटर कंटेंट लाइक वाटरमेलन, फिर सब्जा, रागी, कोकोनट वाटर, ये सब कम करना है. एंड टू बी अवॉइडेड फ्रिज की चीजें हैं या फूड कोल्ड इन नेचर, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं खाए, बहुत ज्यादा सावर फूड नहीं खाए. Okay, so now we've come to the end of all that which is to be done with food and properties and all that stuff. Let us just see कि अभी मैंने पहले आपको बताया था कि विरुद्धाहार होता है कुछ, या कुछ ऐसे होता है जो किसी समय खाया तो उससे तकलीफ होती है. तो इज इट दैट दे हैव टू अवॉइड दिस फूड ऑल टुगेदर? बेटर इफ यू वांट हेल्दी लाइफ, बट कभी कभार खाना ही पड़े तो क्या करना चाहिए हमें टू काउंटर दिस? Maybe they can consume it at a different time or add something to it that will act as an antidote for it. For example, curds or fruits, especially the ones with a large water content, can cause rhinitis. यानी सर्दी होती है ना, नाक बहती है, छींके आती है वगैरह. तो in some people, especially those with cough prakriti, so to counter that effect, add a little pepper powder, black pepper powder, dahi के साथ खा सकते हैं, या sprinkle it on the fruits along with a little sunth powder before eating. And try avoiding them in the evening. Don't eat them in the evening. Maybe you can have it around 10 to 5, not beyond that. कभी कभी किसी को रात को दूध पीकर भी सर्दी होती है, तो उनके लिए उसमें थोड़ा सा हल्दी और सुंठ पाउडर डाल के बॉईल करके पियेंगे तो इट इज अ बेटर ऑप्शन. ड्रिंक इट वार्म ऑल्सो. Then there are some people who are allergic to suran, elephant foot और yam बोलते हैं ना, suran या अड़ू, कोलोकेशिया लीव्स, अरबी के लीव्स वगैरह जो होते हैं. Sometimes क्या होता है, they may experience itching while cutting them.
or can have irritation in the throat after eating. So for this, add some sour item like say tamarind, imli add कर सकते हैं या kokum add कर सकते हैं while cooking, or rub the same on the palms while cutting that. Now we come to the last part of this thing. We come to home remedies, यानी घर के नुस्खे कुछ कुछ है. We do know some of these, हम फॉलो भी करते हैं, पर कुछ कुछ ऐसे हैं थोड़े नए, तो let me just go through with that, okay? अभी टू इम्प्रूव योर एपेटाइट, अगर किसी को कम भूख लग रही हो तो क्या कर सकते हैं? खाना खाने बैठते हैं ना, तो वी कैन डू दिस. अ पिंच ऑफ हिंग, pinch of pepper powder, pinch of black salt, black salt, pepper powder and hing, few drops of lime juice and about 1/4 teaspoon of ginger juice, ये सब लेना है. and about 1/4 कटोरी गर्म पानी लेना है. और उसको हम क्या कर सकते हैं, खाना खाने जब बैठते हैं ना, तो उसके पहले थोड़ा सा इसका 1/3 पार्ट पियेंगे, खाना आधा हो जाए तब 1 पार्ट पियेंगे, और खाना खत्म हो जाए तो एंड करें फिर इसी मिक्सचर से. दिस डेफिनेटली इम्प्रूव्स योर एपेटाइट. इट सिक्रीट्स ऑल द एंजाइम्स एंड जूसेस दैट आर नीडेड फॉर डाइजेशन. अगर डाइजेशन पुअर है तो वो इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा हींग, ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर, थोड़ा सा फ्रेश अदरक, धनिया और मिंट लीव्स छाछ में लें. As I said earlier, if you have this combination like masala chas before food, then it acts as an appetizer. After food, it will act as a digestive. खाना खाने के बाद में अच्छा खाना हजम होने के लिए, मुंह क्लीन करने के लिए बीटल लीफ है, पान खा सकते हैं. Then don't drink water at least half an hour before and after food. Avoid drinking water while eating unless absolutely necessary. Don't lie down for at least 2 to 2.5 hours after eating. No strenuous activity for 2-3 hours after a meal. And avoid heavy food for dinner. Dinner सबसे light होना चाहिए. अगर joint pains है, with age so many times arthritis हो जाता है, घुटने के पेन वगैरह अगर है ना, तो स्पेशली उसके लिए ये काफी अच्छा होता है. सुंठ पाउडर जो होता है उसका पानी में एक पेस्ट बना के ना लगाना है. जस्ट बी माइंडफुल, केयरफुल. पित्त प्रकृति के लोगों के लिए ये नहीं अच्छा है, क्योंकि उसमें रेडनेस, एलर्जी जैसा हो सकता है, रेडिश रैश आ सकती है. और गर्मी के सीजन में बाकी लोगों ने भी थोड़ा सा अप्लाई करके फिर ट्रायल एंड एरर से लगाना है. बट दिस रियली गिव्स वेरी गुड इफेक्ट. कफ प्रकृति और वात प्रकृति के लिए बहुत अच्छा होता है. Then consume warm to hot water boiled with little सुंठ and cinnamon powder twice a day. तो समझो 100 ml पानी, सुंठ का 1 चुटकी भर डाल के अच्छी तरह से बॉईल करें, और पीने के टाइम पे इसमें 1 चुटकी सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर भी डाल के पी सकते हैं. ये दिन में 2 बार लेंगे तो इन्फ्लेमेशन शरीर में कम हो जाता है. Then roast 2 teaspoons of सुंठ powder, 1 teaspoon of castor oil and consume daily on empty stomach. Again, as I said, avoid in summer and pitta prakriti people. अभी गर्मी के सीजन में जब किसी को यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूरिन का प्रमाण कम हो जाता है, या आंखें लाल होती है, आंखों में जलन होती है, तो टू कॉम्बैट हीट क्या करना है? सपोज 1 कप पानी में धनिया और जीरा सोक करना है. 1-2 घंटे के बाद में वो फूल जाएगा तो हाथ से मसल के छान के ये पानी पी सकते हैं. Then sabja soaked in water, then you add milk and drink that. Add rose या मोगरा के पेटल्स जो रहते हैं ना, वो पानी में डाल के रखें, या वाड़ा खस जो बोलते हैं, वो भी पानी के इसमें डाल के मटके में डाल के रख सकते हैं. Drink coconut water. Then रागी का प्रमाण खाने में बढ़ाइए, इससे हीट कम हो जाएगी शरीर की. Eat fruits with large water content, जैसे watermelon है. Drink fresh and diluted buttermilk. एंड ड्रिंक बडी शेप इन्फ्यूज्ड वाटर, यानी सौंफ पानी में डाल के थोड़ी देर रखें और फिर वो पानी पिए. एक रिकरेंट कोल्ड एंड कंजेशन, बार बार जिसको सर्दी होती है, सर भारी होता है, चेस्ट में हैवीनेस कफ की वजह से लगता है, उनके लिए कुछ नुस्खे हैं. अब बॉईल अबाउट ½ liter ऑफ वाटर विथ 5 to 6 तुलसी लीव्स इन इट. उसमें 2 क्लव्स लौंग के डालने हैं, 2 ब्लैक पेपर, एक थोड़ा जिंजर का थोड़ा टुकड़ा. बॉयल दिस वाटर वेल
एंड थ्रू आउट द डे बीच बीच में ये पानी गरम गरम पीजिए, बाकी के टाइम पे सादा पानी पी सकते हैं। Avoid drinking water on empty stomach in the morning and also just before going to bed if you have recurrent cold and cough. Just keep this in mind. Avoid curds and fruits with large content at night. Eat other fruits in the daytime only between 10 to 5. Now some masalas. These are the masalas that we use in our daily life in the kitchen, but you can use them for other things than just giving taste to the food. अभी ठंडी का मौसम है, क्रैक्ड हील्स हो सकते हैं, तो इसके लिए एक नुस्खा है कि टर्मरिक का पाउडर लो, कैस्टर ऑयल लो, दोनों मिक्स करके एक पेस्ट बना के हील्स को लगा के रखो, रात भर सॉक्स पहन के सो जाइए। देन फॉर डैंड्रफ, wash your hair with a decoction of turmeric, त्रिफला, रीठा एंड शिकाकाई। अगर पैर में वगैरह मोच आ जाए कहीं पे, तो ये तो पता है, टर्मरिक इन हॉट वाटर विद एलम, थोड़ा सा एलम डाल के। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है ना, तो इनके लिए एक है 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून ब्लैक तिल, काले तिल जो होते हैं वो 1 चम्मच टर्मरिक में, और 1 चम्मच आंवला पाउडर, रोज सुबह खाली पेट खाना है ये मिक्सचर। हल्दी, काले तिल और आंवला पाउडर। कार्डमम यानी इलायची, बैड ब्रेथ के लिए है ये, तो खाना खाने के बाद में, लंच और डिनर के बाद में थोड़ा सा मुंह में चबा के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि हम सौंफ खाते हैं वैसे ये भी खा सकते हैं। फिर ड्राई कॉफ, अगर सूखी खांसी हो तो इसमें ना घर का जो मक्खन होता है, सफेद मक्खन, वो 1 टीस्पून, इसमें 1/4 टीस्पून कार्डमम पाउडर मिक्स करके ये इसका चाटन ले सकते हैं। बर्निंग मिक्सचरेशन यानी यूरिन में अगर जलन हो रही है, लेस यूरिन हो रहा है, तो जैसे धनिया और जीरा का पानी मैंने बताया, वैसे जो हीट कम करने के लिए है, वैसे ही उसी में थोड़ा सा कार्डमम का पाउडर भी इलायची का पाउडर भी डाल के ले सकते हैं, या ऐशगार्ड के जूस में भी इसका पाउडर डाल के ले सकते हैं। फिर नौशिया और मोशन सिकनेस है, ट्रैवल के टाइम में कई लोगों को ऐसे मोशन सिकनेस होता है, तो इसके लिए एक ये है कि कार्डमम का पाउडर, इलायची का पाउडर, फिर थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा नींबू का रस और शक्कर, ये अगर चाटन करेंगे ना बीच बीच में तो नौशिया चला जाएगा। फिर सिनेमन यानी दालचीनी, ईट अ पिंच ऑफ दालचीनी पाउडर आफ्टर मील्स। जैसे कि हम खाना, भूख लगने के लिए अदरक खाते हैं ना पहले, वैसे खाना खाने के बाद में 1 चुटकी दालचीनी पाउडर थोड़े से पानी के साथ लेंगे तो मुंह क्लीन हो जाता है। फिर ना स्पेशली लेडीज को होता है ये मेलास्मा यानी चेहरे पे जो पिगमेंटेशन आता है, तो जैसे हम चंदन रब करते हैं ना स्टोन पे, वैसे ही चंदन के साथ थोड़ा सा दालचीनी भी मिक्स करना है, घिसना है दूध में, और ये पेस्ट लगा के रखे अफेक्टेड एरिया में, रेगुलरली कुछ महीनों के लिए लगाने से ये लाइट हो जाएंगे। फिर जैसे पहले बताया कि जॉइंट में इन्फ्लेमेशन अगर है तो सूंठ पाउडर पानी में डाल के उबाल के फिर पीने के टाइम पे इसमें थोड़ा दालचीनी भी डालेंगे तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। एक और ये है मस्टर्ड, जो हम रोज यूज करते हैं तड़के में, तो जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है। जस्ट कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन फॉर पित्त प्रकृति एंड इन समर अवॉइड दिस, बट फॉर जॉइंट पेन ग्राइंड मस्टर्ड विद कैस्टर ऑयल और ये पेस्ट अप्लाई कीजिए पेनफुल जॉइंट पे। 15-20 मिनट ही रखना है, फिर निकाल देना है। अगर किसी को टिंगलिंग और नमनेस होता है, किसी किसी को ना फीट में या हाथों के उंगलियों में ऐसे होता है, तो मस्टर्ड का पाउडर होता है ना, मस्टर्ड को थोड़ा कूटना है और मस्टर्ड ऑयल में ही उसको मिक्स करना है और अप्लाई ऑन द अफेक्टेड एरिया। ये गर्म होता है, सो अगेन एज आई सेड, पित्त प्रकृति बी वेयर। फिर हार्ड एंड पेनलेस पिंपल्स होते हैं, हार्ड पिंपल्स होते हैं, उसमें पेन वगैरह नहीं होता है, पर उसको दबाने के लिए मस्टर्ड का पेस्ट लगा के ओवरनाइट रख देना है। अगर नेजल कंजेशन है, हैवीनेस इन द हेड है कफ की वजह से, तो ये राई को क्रश करना है थोड़ा सा और उसको सूंघना है, और यही फिर जो पाउडर रहेगा अपने फोरहेड पे रब कर सकते हैं। तिल का भी बहुत अच्छा यूज है। एक तो अगर पीरियड्स में स्कैंटी ब्लीडिंग है तो उसके टाइम पे, जैसे हम संक्रांति के टाइम पे तिलगुड़ खाते हैं ना, बनाते हैं, वैसे ही काले तिल का बनाना है, तिल और गुड़ का लड्डू, ये रोज खा सकते हैं।
अभ्यंग के लिए तिल ऑयल से अच्छा और कुछ भी नहीं है, सो एनी टाइम ऑफ द ईयर तिल ऑयल इज वेरी गुड। देन कम्स कोकम। कोकम एवरीबडी नोज, ये खट्टा रहता है, हम जो खाने में डालते हैं। कोकम बटर का लोकल एप्लीकेशन क्रैक्ड हील्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट है, नौशिया, इंडाइजेशन है, मुंह में स्वाद नहीं है, तो इस कोकम का ना सूप बनाते हैं, सार बनाते हैं। कोकम को समझो, एक 10-12 कोकम को गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है। बाद में इसको तड़का देना है। नॉर्मल अपना जो तड़का रहता है, जिसमें राई, जीरा, हींग, हल्दी, कड़ी पत्ता और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा मिर्ची का टुकड़ा, और फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ और नमक डालना है। इससे मुंह में अच्छा स्वाद आता है, तो खाने के साथ ये लेंगे तो बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। ये कूल होता है, कूलेंट होता है, इसलिए समर में कोकम का शरबत जीरा पाउडर के साथ बहुत अच्छा होता है। अर्टिकेरिया आप सबको पता होगा, वो जो हाइव्स आते हैं, पित्त बोलते हैं, शरीर पे पित्त उठना, तो उसके लिए ये कोकम जो रहता है पानी में सोक करना है, और उसका पानी जो रहता है ये कोकम के पानी का, वो हाइव्स पे अप्लाई करेंगे तो रिलीफ मिलता है। ऑलमोस्ट फिनिश्ड, हाँ जस्ट वन मोर। करी लीव्स हैं, करी पत्ता, बर्निंग सेंसेशन इन अपर एब्डोमेन, जैसे एसिडिटी के जैसे होता है नाशिया के साथ या इंडाइजेशन में, तो करी लीव्स का 2 चम्मच जूस निकालना है, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालना है और थोड़ी खड़ी शक्कर, ये खाने से रिलीफ मिलेगी। कभी कभी ना हनी बाइट हो जाता है, या अपने हाथ पे अगर स्पाइडर हम रब करते हैं ना, तो कभी कभी रैश आता है किसी किसी को, तो इसके लिए थोड़े से कड़ी पत्ते ऐसे क्रश करके ना उस पे रब करना है ऑन द अफेक्टेड पार्ट, दैट विल गिव यू रिलीफ। एंड लास्टली बे लीफ, तमाल पत्र, इसको ड्राई करना है अच्छी तरह से, फिर इसका पाउडर बना के रखना है। और जब नेजल कंजेशन होता है या सर बहुत भारी हैवी होता है ना, तो ये पाउडर सूंघना है, इससे रिलीफ हो जाता है, हेड का हैवीनेस वगैरह कम हो जाएगा। सो आई कम टू द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। अश्विनी, Yes. yeah, can I stop sharing the screen now? Yes, yes, yes. Yeah. Okay. So I hope this was useful for everyone. I hope it was not very boring. I hope you can use all these in your daily life. Yes, definitely. It has a wealth of information and very relevant, basically. I hope so. तो थैंक यू सो मच। अभी किसी को कोई क्वेश्चंस है तो इधर चैट में डाल सकते हैं या फिर ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो काफी सिंपल था। आई जस्ट ट्राइड टू गिव यू द जिस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयुर्वेद, कि आयुर्वेद यानी क्या है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, वी गो टू अ डॉक्टर यानी वैद्य के पास भी हम कब जाते हैं, ओनली व्हेन वी आर इल, या मोस्टली कब जाते हैं कि बाकी सब पैथीज का हमने अभी ट्राई किया है, अभी आयुर्वेद के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वी हैव मेडिसिन फॉर एवरीथिंग, बट सिर्फ हम बीमार, जैसे मैंने पहले बोला, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, उसके लिए अगर आप आयुर्वेद फॉलो करोगे तो इट विल बी रियली वेरी यूजफुल। यू कैन ऑल गो थ्रू ऑल दिस। कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे पर्सनली भी बाद में पूछ सकते हैं। दीदी, दूध से एलर्जी हो तो क्या करें? एलर्जी मतलब क्या होता है? किसी किसी को गैस होती है, किसी को सर्दी होती है, वैसे मतलब एलर्जी कौन से टाइप की है उसके ऊपर है। पर एक ये है कि किसी किसी को हजम ही नहीं होता है दूध से, लूज मोशन होते हैं या गैस जैसे होता है, तो उसमें क्या करना है, गाय का ही दूध लेना है, आधा कप गाय पेट का में दूध। दर्द हो जाता है। हाँ, पेट में दर्द हो जाता है पीने से बच्चा को। बच्चे को, तो मे भी उसको जी। ना गैस होती होगी दूध से, उसकी वजह से दर्द होता होगा। तो एक तो क्या कर सकते हैं कि उसको गाय का ही दूध देना है, और आधा दूध आधा पानी, और उसमें 1 चुटकी सौंठ का पाउडर डाल के ना अच्छी तरह से उबालो, ताकि वो पानी उड़ जाए। सिर्फ दूध पिला के देखो, ऐसा पकाया हुआ दूध पिला के देखिए, यूजुअली यूज हो जाता है। more than 24 5 yoga teacher for more than 20 years ठीक है दीदी। मीटिंग चल रही है।
मैम, आपने बोला कि जिनको कफ प्रकृति है उनको खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए अर्ली मॉर्निंग। जी। हाँ, तो मैडम वो क्यों? देखो, सुबह सुबह ना कफ का ही काल होता है। पानी हम्म। से कफ बढ़ता है। कफ के काल में कफ बढ़ाने वाला अगर हम आहार विहार करेंगे तो कफ जरूर बढ़ता है। इसलिए कफ की प्रकृति के लिए इट्स नॉट गुड टू ड्रिंक वाटर ऑन एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। कुछ थोड़ा खाना खाए, अपना अग्नि प्रज्वलित करे, फिर बाद में चलेगा। ओके, अच्छा, यहाँ मतलब इस जगह पे हम गर्म पानी पिए तो वो भी नहीं? तो भी नहीं, गर्म यानी वो पानी सिर्फ गर्म हो जाता है टेम्परेचर से, पर पानी का गुण तो वही रह जाता है। ओके, तो जिनको कफ है वो अर्ली वो मॉर्निंग खाली पेट पानी नहीं नहीं पिए, पिए। हाँ नहीं पिए, वो बेटर है। पर क्या बेटर। होता है, किसी किसी को हाँ। ये साथ में हो जाता है कि काफी टाइम से, अगर बहुत टाइम से अगर ये कर रहे हैं और ज्यादा हम्म। तकलीफ नहीं हो रही है तो ठीक है। पर अगर इफ यू आर सफरिंग की बार बार छींके आ रही है, सर्दी हो ही रही है, तो फिर इट इज बेटर टू अवॉइड। ओके 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 ओके। ओके। क्योंकि ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट और अलग पॉइंट लगा। आज तक यस मैंने जो सुना है उससे तो यस, मैंने बिकॉज एकदम सी, कैच किया हाँ कि ऐसा क्यों बोला आपने कि जनरली मतलब मतलब मेरे घर में एक कफ प्रकृति के हैं लेकिन हम्म उनको बहुत पानी पीने की आदत है। सवेरे वो पहले 3-4 गिलास पानी पियेंगे ना, बाद में ही वो कुछ खाते पीते हैं। ओके। देखो क्या होता है, जैसे बोला हम्म। अभी बहुत टाइम से ले रहे हैं, साथ में हो जाता है किसी को, लेकिन अगर कंटिन्यूअस ये कंजेशन सर्दी वगैरह की तकलीफ है तो क्यों ये लेना। लेना। ओके ओके। बेटर। हाँ एंड हाँ। सी इट इज, आजकल जो बोलते हैं ना इतना पानी पियो वगैरह, अश्विनी दीदी ने भी बोला है, तो बाकी के टाइम में इट इज फाइन। ओनली फॉर दिस फाइन। प्रकृति आई वुड सजेस्ट कि ये ना, यस यस यस। लेट दिस नॉट बी जनरलाइज्ड ओनली फॉर दिस प्रकृति पीपल। दिस प्रकृति। या, ओके ओके। थैंक यू मैम। या वेलकम। हम्म। Didi, can I take entertain little time? यस श्योर। As you have explained the emergence of Ayurveda and the parampara of Ayurveda, यस। Pauranic, totally a Pauranic. That is why in the entire cosmos, if you search for the emergence of medicine, first take that Vaidya. हाँ, वैद्य का डेफिनेशन क्या होता है? वेदना रहित इति वैद्य, है ना? उसके बाद वैद्य नाथ किसे बोला जाता है? धन्वंतरी को नहीं दीदी, वैद्यनाथ बोला जाता है शिव जी को, शिव जी। है ना? हाँ। तो यही जो है ना, कोट्टकल वालों ने जब अपना सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाए थे 2002 में, तो मैं ऑन देयर इनविटेशन आई अटेंडेड दैट मीटिंग। न भूतो न भविष्यति, वैसा सेलिब्रेशन था वो। उस समय ही वो लोग 6 करोड़ खर्च किए हैं, हेलीपैड भी। तो हर तीन दिन का था, हर एक में जो है ना एक एक गेस्ट था। और दूसरों के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। एक दिन था डॉक्टर स्वामीनाथन, चीफ गेस्ट स्वामीनाथन था। तो उस दिन उन्होंने जैसे ही बोलते बोलते इतना ही बोल दी, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा गोज बैक टू 5000 ईयर्स, एज यू हैव रेफर्ड इन योर स्पीच आल्सो, के 5000 ईयर्स करके। तो मैं थोड़ा सिर खुजा लिया। उसके बाद में जब उनका हो गया, तो उन्होंने डाइट से उतर रहे थे, अपने पत्नी के साथ थे, तो करीब में गया। मैं बोला, डॉक्टर स्वामीनाथन, इन योर address speech you have referred the history of Ayurveda goes back to 5000 years. It's not like that, it goes back to 7500 years back, like that, because as my Gurudeva Anandamurti, he said the emergence of Sadashiva, the first Tarak Brahma, whom हम वी रेफर करते हैं। पता नहीं आप आनंद मार्ग से दीक्षा लिए, ये पता नहीं, एज ए गेस्ट। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें अंतर बताने के लिए मैं थोड़ा सा बीच में दखल दिया। नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। 7500 के ऊपर होता है, क्योंकि कि जैसा ही सदाशिव ने आया तब से ही मेडिसिन का वो सिस्टमेटाइजेशन हुआ। उससे पहले मनुष्य ने ये वो पत्ता खाए, ये पत्ता खाए,
और वो खाए, ये खाए, या मिनरल्स खाए या घास खाए, कुछ भी खाए, उससे वो पता लगाते थे। इसीलिए कभी कभी यूनानी में एक रेफरेंस आता है, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, वो बोलते हैं उनसे, यूनानी का जो बोलते हैं कैसा आया, तो उसमें बोलते हैं उन्होंने उनसे जो है ना पत्ता हर एक जड़ी बूटी बात करता था। मैं तो थोड़ा सा मिथोलॉजिकली अभी किसी को कुछ भी बोल नहीं सकते। ऑडिबल? हाँ। तो वैसा ये जो आया परंपरा, लेकिन ये परंपरा जो है ना, जैसा अगर अभी तो बच्चों को हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा तो कहीं कहीं तो निकाल ही दिए सब्जेक्ट, तो इसी सब्जेक्ट से वो जो है ना परंपरा जैसा लॉर्ड ब्रह्मा करके पहले जो दिए ना दीदी, तो लॉर्ड ब्रह्मा त्रिमूर्ति में जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये जो है ना वो त्रिमूर्ति में आते हैं, लेकिन जी। ऐसा कोई नहीं है। लॉर्ड ओके। ब्रह्मा अकॉर्डिंग टू आनंद यस यस। मार्ग फिलॉसफी, ओके। है ना। जी। तो उसके बाद में जो बता रहा हूँ कैसे आया, दक्ष प्रजापति, उसके यस। बाद में जैसा जैसा है ना जी। ये आयुर्वेद चरित्र, अवतरण। इसी इसी रेफरेंस में मेरा बेटी जब कॉन्वोकेशन में बहुत मैंने प्रेशर दे के बुलाया, पिताजी आप अटेंड नहीं करे तो कैसा, प्रिंसिपल खुद पूछे हैं कि पिताजी आ रहे हैं नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी तो 2004 में गुजर गई। तो उन्होंने कॉन्वोकेशन में जब लेने के लिए गए तो मैं बोला अकेले मैं कहाँ आ सकता हूँ, तो थोड़ा सा आंसू उतारे, तब मैं जाना पड़ा। जाते ही थोड़ा सा मेरे घनिष्ठ संपर्क था प्रिंसिपल, तो उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा प्रेजेंस, लेकिन मैं इतना नहीं चाहता, लेकिन गया, वरंगल में गया। तो जाने के बाद जो है ना उन्होंने फर्स्ट गेस्ट मुझे बुलाया लेक्चर देने के लिए। मैं बोला मैं तो पुराना वैद्य हूँ, मैं बीएमएस नहीं हूँ, वो दो कब का हूँ, 1971 का हूँ। हाँ, तब तो मैं कैसा आप लोगों को एड्रेस कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्रिंसिपल ने जो है ना आप ही पहले लेक्चर देंगे करके बोले। तो मेरे से पहले जो है ना वो लोगों को संस्कृत जो पढ़ा रहे थे, भद्राचलम का पुजारी है वो, बड़ा पुजारी, वो पुजारी धन्वंतरी का आरती फराया। फराने के बाद उन्होंने बैठ गया। उसके बाद में मैं जैसे ही विद प्रेशर जब बोले तो डायस पे गया। डायस पे जाने के बाद मैं इतना ही पूछा कि अभी मैं कौन सी भाषा में आपसे बात करूं, तो क्योंकि मॉडरेशन जो कर रहे थे वो लड़की कर रहे थे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में थोड़ा सा ग्रामेटिकली जैसा जैसा था, मैं थोड़ा सा इसीलिए इंटरप्ट करने के लिए कौन सी भाषा में आप लोगों से, मेरा मदर टंग तो तेलुगु है और सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुआ, जो भाषा में आप लोग चाहे मैं उस भाषा में बोल सकता हूँ। तो बच्चों ने बोले नहीं नहीं सर आप तेलुगु में ही बोलिए। तो जब मैं एड्रेस करने से पहले बोला बोला सारी दुनिया में मुझे एक ही एक बता दीजिए, आज कल के दिन से आप जो है ना डॉक्टर कहलाना उतना उचित नहीं होता है, वैद्य वास्तव में जो है ना वैद्य राज कहना चाहिए आयुर्वेद वालों को। डॉक्टर कहे तो इंग्लिश में जो है ना डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग है या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है या डॉक्टर, फिर बोलना पड़ता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करके, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। कोई उचित नहीं है करके। आप लोगों को जो है ना कल के दिन से आपको डिग्री वैद्य। दिया जाता है, आयुर्वेद आचार्य करके दिया जाता है, जी। बीएमएस। तो इसीलिए आप लोगों को मैं वैद्य समझता हूँ। मुझे इतना ही बता दीजिए दी एन अर्थ, अर्थ में हु इज द अथॉरिटी ऑफ वैद्य और मेडिसिन करके बोला। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों से पूरा बता दीजिए। और वहां पर ये भी प्रोविजन बताया, आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन दिस थिंग टू द फैकल्टी, क्योंकि फैकल्टी के साथ जो है ना बच्चों के साथ फैकल्टी को क्वेश्चन करे तो अच्छा नहीं लगता है, भद्दा लगता है, ये उचित भी नहीं होता है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द फैकल्टी। तो उसके बाद में कोई भी वो लोग छात्रगण में एक एक भी उठ करके ये नहीं बताए कि अथॉरिटी कौन है। उसके बाद में मुझे थोड़ा सा चिंता लगी। अब जो है ना मैं संस्कृत में उस पर्सनालिटी का जो प्रेयर है वो मैं प्ले करता हूँ करके, जय शुभ वज्रधर करके। अभी आज जो है ना मुझे दीदी बोली जी। कि जी। प्रभात संगीत में गाइए बोले, तो वही गाया मैं आज। तो वो प्ले करा, प्ले करने के बाद में ये पूछा इसमें वो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी कौन है जरा बता दीजिए। तब भी बच्चों ने नहीं बता सके,
ताकि संस्कृत का रहता है ये लोगों को। जब जय शुभ वज्रधर शुभ्र कलेबर व्याघ्रंबर हर देहि पदम बोले तो आप बोल नहीं सके, तो आप बताइए क्या बोले। तब उसके बाद में मैं बोला ये प्ले करने के बाद भी आप लोग नहीं बता सकते हैं तो आप लोग कैसा डिजर्व कर सकेंगे कि आयुर्वेद से आए हैं करके। तब जो है ना वो लोग थोड़ा का गरम गरम हुआ, सर आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। तब मैं वो लोगों को बताया कि दिस इज द पर्सनालिटी ऑफ सदाशिवा व्हिच माय गुरुदेवा हैज संग। हाँ, तो ये जो है प्ले करे सो। उसके बाद में ये बोला अभी आपका जो है ना संस्कृत पढ़ाने वाला आचार्य जो पैर दिया, ये जो है ना पौराणिक देवता है, इनका इमरजेंस कब भी आया बोले तो दिवाली से पहले 13 दिन वो धन्वंतरी जयंती माना जाता है, 13th डे। तो इसीलिए इसमें जो है ना दीदी आप जो बोल रहे थे उसमें थोड़ा सा ये रेफरेंस जो है ना या आयुर्वेदिक परंपरा आप जैसा पढ़े हैं जैसा आया है वैसा ही है। लेकिन वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू आनंद मूर्ति जी दैट ही हैज क्लैरिफाइड वेरी नाइसली। And the emergence of Sadashiva comes under the category of tantric practitioners. These people have not admitted. That is why Ayurveda doesn't have the reference of Sadashiva. ओके And इसके बाद भी जैसा ही विष के बारे में बता रहा हूँ, विष का जैसा आपका गद निग्रह इसमें आता है ना, तो उसमें जो है ना विष के बारे में बताए कि विष का अथॉरिटी कौन है दीदी मालूम है, इसीलिए उनको नीलकंठा बोला जाता है। जब समुद्र मंथन करे तो विष जब निकला वो विष को कोई भी assimilate नहीं कर सके, इसीलिए शिवजी ने जो है ना अपना कंठ में ले, इसीलिए उनको नीलकंठा कहा जाता है। ये तो बहुत ही पौराणिक है दीदी। यस 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 नहीं थैंक यू फॉर द ऐसी पौराणिक है। इंफॉर्मेशन दादा। आई विल तो गो थ्रू ये इट। जो आयुर्वेद वालों ने हर्बल के बारे में अथॉरिटी होंगे, हर्बल के बारे में जो कंपाइलेशन था, इसीलिए आयुर्वेद का कहा जाता है वेद में बोले तो अथर्वण वेद में एक भाग है ना, जी बोलते जी हैं ना दीदी। हाँ अथर्ववेद का भाग बराबर अथर्ववेद में, जी अथर्ववेद में एक भाग है। तो जी इसमें क्लासिफिकेशन तो इधर साइड में आए दी अथॉरिटी ऑफ जो विष को एसिमुलेट करने का माने दीदी जब विष आया है उसको यूटिलाइजेशन करने का से केवल शिव जी का ही कैडर था उपयोग हाँ करने का। बिल्कुल ये लोगों को नहीं था, वैदिक वालों को नहीं था उतना ज्ञान विष का। जो विष जो होते हैं ना, मूषक विष ये सब जो होते हैं ना। हेलो हाँ हेलो दादा, थोड़ा क्वेश्चंस के लिए हम लोग ये देते हैं, टाइम देते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। I think somebody had asked questions about milk and Yes, which yes, fruits yes, ना yes. so anything that is sour to taste, खट्टा बहुत ज्यादा है तो वो दूध के साथ नहीं हो पाएगा। मधुर रसात्मक और अम्ल रसात्मक है, ऑपोजिट गुण है, तो इसके लिए वो नहीं चलेगा। और पूछा था पपाया एंड दिस थिंग मीठा है तो थोड़ी बहुत मात्रा में चलेगा, दैट इज ओके। पर अगेन पपाया इज उष्ण एंड ये थोड़ा ठंडा है तो मीडियम मॉडरेशन में चलेगा। Is that clear? I think Srija Didi had asked. क्या किसी ने I don't know किसी ने पूछा था। I'm traveling. So, Oh sorry somebody had raised the hand I thought हाँ yes, it was me. yeah okay Yes, it was me. I'm traveling. That's why I just tried to talk. yeah it's okay, so I guess Okay, I thank hope you. I've answered Yeah, it. that's clarified. Yeah And what about pineapple, Didi? Like I no find that not good, very not much good again sour to taste, right? Sour and Yes, sweet yes. not good, so Because better this avoid. is becoming So you can have very fruit and common, milk. in all the shakes. What? I find that very much in the juice shop and shakes and all that. Yes Becoming very common. yes I find but that. yes So it's ideally good to not have this good information. though, not good. Maybe occasionally you can take it but not on a regular basis, definitely not. Okay. Yeah. Thank you. Welcome. If there are no questions, Can we, yeah दीदी लिटिल बिट अबाउट द फूड क्लासिफिकेशन। दीदी जो मांसाहार को आप राजसिक में डाल दिए हैं,
कि कुछ वो चीज क्लासिफिकेशन में हाँ हाँ राजसिक में हाँ बता रहा हूँ कि अभी जी सात्विक का डेफिनेशन, राजसिक का डेफिनेशन, तामसिक का डेफिनेशन हम्म कुछ 1 मिनट भी नहीं हो सकता है। सात्विक जो बराबर होता है इट इज गुड टू माइंड एंड बॉडी, दैट इज यस कॉल्ड सात्विक। यस एंड द राजसिक होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक सिस्टम, आनंद मार्ग बता रहा हूँ कि जो राजसिक जो बोला जाता है म्यूटेटिव फूड का डेफिनेशन होता है इट इट मे बी गुड और मे नॉट बी गुड टू बॉडी, इट इज सॉरी इट मे बी गुड, इट मे नॉट बी गुड टू माइंड बट इट इज गुड टू बॉडी, इसका होता है राजसिक। जी एंड तामसिक का डेफिनेशन होता है इट इज बैड टू माइंड, इट मे बी एंड गुड बॉडी और मे नॉट बी गुड टू बॉडी। दिस इज द ओके गिवन लेक्चर ऑफ आनंद मूर्ति जी। ओके तो ओके थैंक इसमें क्लासिफिकेशन अगर करे, बाबा ने खुद बोले हैं सब मांसाहार कोई भी नहीं होता, सब मांसाहार जो है तामसिक होता है, से इसीलिए आनंद मार्ग में नहीं लिया जाता है। जी और एक बता रहा हूं इसी में भी प्याज और लहसुन आप जो है ना इसमें इंक्लूड करें, कौन सा राजसिक में, वो भी तामसिक आहार में आता है अकॉर्डिंग टू आनंद मार्ग सिस्टम। इसीलिए दे आर फॉरबिडन टू मार्गिस, यस दे आर फॉरबिडन टू मार्गिस। यस एंड सात्विक आहार एक ही जो बोला जाता है, इसीलिए डिक्लेयर्ड है सात्विक आहार सभी लोग ले सकते हैं। और राजसिक आहार जो है ना सन्यासी नहीं ले सकते, लेकिन गृही ले सकते हैं, बाबा खुद बोले हैं। तामसिक आहार कोई भी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो गृही हो, या मार्गी हो या सन्यासी हो, कोई भी नहीं लेना चाहिए। तो अभी आपका क्लासिफिकेशन में जो है ना राजसिक जो इंक्लूड करे, लेकिन एक ही एक होता है मांस जो होता है जो सात्विक होता है, मैं यहाँ बोल नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल नहीं इट इज मोर फॉरबिडन टू स्पेल आउट कि कौन सा मांस होता है जो सात्विक होता है, बोलना नहीं चाहिए, बाबा खुद बोले हैं, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। वो एक ही होता है मांस जो सात्विक होता है, वो दैट गोज बैक टू ऋषि एज आल्सो। तो इसीलिए इट इज नॉट अलाउड बाय आनंद मूर्ति जी टू रिवील, दैट इज व्हाई आई एम नॉट रिवीलिंग। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद थैंक यू दादा Thank you, Ashwini Didi, for giving me a chance to talk here. Wonderful, very nice, and very actually, it was huge. Lot of information. I hope it was not too much and too boring. And a lot of incompatibilities basically is a very good area of Ayurveda. And people don't realize because now people don't respect that. We have Yes. milkshakes everywhere and Hmm. tend to drink them. So at the end of the day, at least when you're aware that उसको कम में लेना चाहिए या moderation में लेना Yes. चाहिए, or otherwise even prakriti. So you know that if you are of this character, do not eat few things. It is not going to help you. So that Yes. definitely helps us. It is like a guide, Bible book लेके हम लोग ये करेंगे. So thank you so much. So we close the session for the day. Thank Thank you. you. Namaskar. Thank you very much, Ashwini Thank Didi. you. And thank you, Aparna Didi. It's a pleasure, it's an honor to GPIF that you people came here, especially to Ashwini Didi, जिन्होंने पूरे साल one class after the other हंसते हंसते हम Yes. लोग कैसे इस पूरे classes को खत्म कर गए, समय का पता नहीं चला. And we don't want to be part from you, so I request you to come again and with new subject, with new theory, so that we would be enlightened with you by all the information that you can give us. Or anyone else who wants to say something, please unmute themselves. ठीक है. Thank you very much, Ashwini Didi. Yeah, welcome, welcome, Bhairavi Didi. Welcome. So I think we should end here. Yes. Okay. Thank you. Namaskar. Once again, Aparna Didi, thank you so much. पूरा गागर में सागर था, मतलब you taught us so many things one after the other. But बहुत अच्छा लगा, पता नहीं चला कि इतना समय कैसे निकल गया. Thank you. And thank you again to all the people who have joined us.
and I expect that they should continue with us on every Thursday at 8 p.m. नमस्कार सभी को, परमपिता बाबा की जय।